Good morning, students. So, in my last lecture, I was telling you about the advantages of using scientific names, and there were some scientific names. I told you to learn this, okay? So, history of classification, again, I told you that you have to go through this yourself. The next page is major categories of classification. This is your page number 10, and in this, what are the categories? This again is very important. This comes in exam many times. So first one is your artificial system of classification. In artificial system of classification is based upon one or a few easily observable characters and is devised and used for a limited purpose where convenience and speed are important. So artificial system of classification, as the word itself is signifying that it is an artificial system, and we use it where we need work with a very fast speed. Means we don't need any accuracy. We are not going for each and every character of a organism. We are just superficially seeing the things, and if we are superficially seeing things, we can go for the artificial system of classification. Now it was given by Pliny, so you have to remember the names who has given these type of systems. There are 2-3 systems more are there, so you have to remember that who has given this system. Okay, now the animals in the system were classified on the basis of habitat, land, air, water. Habitat means the animals were classified according to the places where they used to live. Means we are not going for internal anatomy or the structure of the body, the organs, the organization, the cellular level. We are not talking of this. That is why it is called artificial system of classification, because we are only seeing where they are living, what is the habitat, then flying ability of animals. Like animals means birds, insect, they can fly, but we are taking them as a group that they all are flying. So if we are taking it as a organism that are flying, so there are so many things which fly. Means there are insects also, there are birds also, so bats also. The bat is a mammal. If we classify properly, there are so many differences. Then birds again has a different group, then insect, it is having a different group. So here we are superficially seeing things, and we are only taking into consideration that these organism or these things, these organism are flying. Okay, then next one, plant. Plant we just see that it is a herb, shrub or tree. मतलब छोटा है, बड़ा है या बहुत ही बड़ा है. So this type of difference means only this type of difference is considered. Then lifespan, annual, biennial, perennial. Means the organism is annual, means it is living for 1 year only, or biennial means 2 year or more years. So in plants this is seen. Then nutrition, epiphytes, saprophytes or parasites. So means the mode of nutrition in the plant and the animals, means the simple things are considered. We are not going into details of the animals or plants. Now next system we are having natural system of classification. Natural system of classification is based on the resemblance and difference among the organism. It includes internal as well as the external features like anatomy, ultrastructure, cytochemistry. अभी आपका ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ सीइंग ऑल द रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस. along with the differences we are also going for the ultra structure, anatomy. मतलब आप उसका क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म का अंदर बॉडी के जो डिटेल्स हैं, कैसे उसके ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, क्या क्या टाइप के हैं, कहाँ पर वो किस किस ऑर्गेनिज्म से सिमिलर है, किससे डिफरेंट है. तो दैट ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडिंग. लाइक इन द आर्टिफिशियल सिस्टम वी आर नॉट गोइंग, वी वर सुपरफिशियली सीइंग कि बाहर से देख के हमें जो जो चीज़ें दिख रही हैं, तो वी आर सीइंग दैट. ओके, now but in the natural system of classification we are seeing each and everything, and we are considering the structure also, and all the means the cellular details also we are trying to see. So this is the best system of classification. Then it was proposed by John Ray.
Again you have to remember the name that the system was given by John Gray, and fossils have a little significance in the system. यहाँ पे fossils जो हैं वो ज़्यादा important role play नहीं कर रहे हैं, क्योंकि fossil का कोई काम नहीं है. organism को क्या करना है आपने, उसकी cellular details और anatomy देखनी है, तो उसमें there is no need. Now fossils where they are important is फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यहाँ पे आपके फॉसिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज फाइलोजेनी मीन्स इट इज़ द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट्स द पॉसिबल evolutionary relationship based on the ancestry and the descent. Means you have to see कि आपका जो ऑर्गेनिज्म आप स्टडी कर रहे हैं ना, फाइलोजेनी में क्या करते हैं हम कि वो इवोल्यूशन उसका कहाँ से हुआ है. इवोल्यूशन मीन्स एक्चुअली वेयर फ्रॉम इट हैज़ इवॉल्व. एज आई टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, इफ आई से द ह्यूमन्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द एप्स मीन्स दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स समवेयर. तो ऐसे ऐसे करके कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बनी हुई है. तो हम क्या करते हैं, फाइलोजेनी का मतलब होता है कि जो आपकी मेन ब्रांच है जहाँ से ओरिजिन हुआ है उस स्पीशीज़ का या उस ऑर्गेनिज्म का, और आज वो मॉडिफाई होने के बाद वहाँ तक पहुँचा है. ओके, सो टुडे प्रेजेंटली वी आर सीइंग द लेटेस्ट फॉर्म, but actually from where it has evolved, and if we try to trace back the history of the organism, that is called phylogenetic classification. मतलब अगर आप पीछे जाके देखते हैं कि कहाँ से वो actually evolve हुआ है, that is called phylogeny. Okay. Now in such a system of organism belonging to a same group are believed to have the common ancestor. अभी हम इसमें क्या बोलते हैं कि अगर आपका सेम ग्रुप है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि वो कॉमन एंसेस्टर्स से आ रहे हैं, है ना. कॉमन एंसेस्टर मतलब उनका एंसेस्टर एक ही होगा, तभी तो वो आगे जाके थोड़े थोड़े सेम से दिख रहे हैं, है ना. तो एंड दिस इज इट मे बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ फैमिली ट्री. फैमिली ट्री के फॉर्म में इसको बनाते हैं और इसको क्लैडोग्राम कहते हैं. जो फैमिली ट्री होता है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लैडोग्राम. ओके, नाउ फैमिली ट्री आई विल शो यू व्हाट इज़ इट एंड व्हाट इज़ क्लैडोग्राम. ओके, नाउ the phonetic classification is based upon the numerical evaluation and similarities between the group and organism, and ordering of these groups into higher ranking taxa on the basis of similarities. Now here we will see that इसमें क्या करते हैं, न्यूमेरिकली काउंट करना होता है कितने सारे सिमिलैरिटीज़ हैं, कितने सारे डिफरेंसेस हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कंसीडर कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये इस पर्टिकुलर ग्रुप का है या इस पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं है. Okay, so reading all this here, the last line it is mentioned that fossils have a vital role प्रोवाइडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इसमें फॉसिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये जब फॉसिल से क्या होता है कि अगर आप पीछे की स्टडी कर रहे हैं तो यू विल कम टू नो कि ये वाला फॉसिल जो है इस ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना. तो जब आपको फॉसिल की आप स्टडी करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये वाला जो अभी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है ये इससे सिमिलर है. तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, फॉसिल्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो आपको इससे एंसेस्टर मिल जाएगा उसका एक्चुअली में, जहाँ से वो इवॉल्व हुआ होगा ऑर्गेनिज्म. Now again I was telling you that we are having this gray colored boxes here, numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy. Okay, cyto का मतलब होता है cell, numerical means it is due according to the number, and this one is chemotaxonomy due to the chemicals. It is also called chemical taxonomy. Now this whole paragraph, this whole box you have to go through yourself. If you feel any doubt, any problem, you can contact me and ask me. Now we'll move to the next heading. It is major taxonomical hierarchies. Now hierarchy means a group of things ranked one over the other. Hierarchy का मतलब क्या होता है कि आपका जो सबसे छोटा चीज़ है उसके ऊपर 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 आपने एक बड़ा सा, मतलब आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं ग्रुप वाइज, है ना. तो यहाँ पे हम किसको कह रहे हैं, स्पीशीज़ जो है, दिस स्पीशीज़, दिस इज़ द बेसिक टेक्सोनॉमिकल यूनिट इन अ क्लासिफिकेशन. तो स्पीशीज़ हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया. तो फैमिली बहुत बड़ी होती है, उससे छोटा क्या होता है, जीनस होता है. और स्पीशीज़ जो होती है वो बहुत ही पर्टिकुलर होती है, वेयर यू कम टू नो ऑल द physical resemblance and everything. Here you can see in the species it is written that the organism we are keeping in a species, the organism which are interbreeding among themselves.
तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, स्पीशीज़ में हम बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हमने एक्चुअली अब यही वाली चीज़ जो है और इसी टाइप के ऑर्गेनिज्म को साथ में रखना है। और सबसे हायरार्की का सबसे बड़ा स्टेप क्या है, इट इज़ किंगडम। तो किंगडम हमने सिर्फ दो में डिवाइड किए हुए हैं, ओनली प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ओनली टू किंगडम्स आर देयर। एंड इफ़ यू गो इनसाइड ऑफ दोज किंगडम्स, देन यू विल कम टू नो प्लांट किंगडम में ही इतने सारे प्लांट्स हैं, एंड इफ़ यू गो थ्रू द एनिमल किंगडम यू विल फाइंड लॉट मैनी एनिमल्स देयर। ओके, तो किंगडम हमने सिर्फ मेजर ग्रुप लिया है कि आपके प्लांट्स जो हैं दे आर हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक दे कैन मीन्स मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, दे आर ऑटोट्रॉप्स, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। तो हमने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बेसिस पे हमने ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया था, एंड दैट वाज मीन्स द टू ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म वर डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट व्हेन वी केम टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड वी ट्राइड टू कंपेयर इट विद द अदर ऑर्गेनिज्म, then we slowly came to get very specific, and when we specified the things properly according to the properties and their characteristic, then we came to the species at last. Okay, so this is hierarchy, it means the grouping of things one of the other. Now hierarchy of a step in which each step represents a rank. इसमें आपका एक एक स्टेप क्या कर रहा है, एक रैंक को या कैटेगरी को बता रहा है. सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट, ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. क्योंकि वो एक पूरी कैटेगरी है तो पूरी कैटेगरी को कहा जाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, एंड इट कंस्टिट्यूट्स टेक्सोनॉमिकल हायरार्की. और इसकी वजह से ही आप ये जो कह रहे हैं कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, तो कैटेगरी वाइज आप जब उसको लगा रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड हायरार्की, टेक्सोनॉमिक हायरार्की. Okay, now organisms are classified into groups of various hierarchical level on the basis of a shared characteristic. So again they have told the same things. First one is your kingdom. Kingdom के बाद आपका आता है phylum. Phylum, then you are having order, family, this genre and species at last. Okay, so one by one we are seeing this. So you have seen this in 9th standard also, but anyway I'll take some of the points here. Now species are the basic, this ये मैंने अभी बताया था आपको, ये बेसिक मतलब आप फाइनली आ गए हैं कि लास्ट आपने ऑर्गेनिज्म कहाँ क्लासीफाई करके रख दिया है, तो दैट इज़ योर स्पीशीज़. ओके, सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो आपके एक ही स्पीशीज़ में ऑर्गेनिज्म रखे होंगे, दे आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अमंग देमसेल्फ, राइट. Then physical resemblance arising out of the common ancestor. और इनमें काफ़ी सारी resemblance भी होगी, एक जैसे होंगे. अगर आपने अलग अलग ग्रुप के भी रखे हुए हैं वहाँ पे, तो क्या होगा कि जो आपके ग्रुप मतलब जो ऑर्गेनिज्म आपने रखे हुए हैं वो काफ़ी सिमिलर होंगे एक दूसरे से. सिमिलर इसलिए होंगे क्योंकि आपने अभी बोला कि वो हमने रखे हुए ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं. So the organism that are capable of interbreeding, obviously they might be of a same category, then only you have kept them together. So here the ancestral means their ancestors are also same and they are having this, they can interbreed among themselves. Okay, और यहाँ पे क्या होता है, in fact each species is a gene pool which is adjusted in a given environment. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन, जीन पूल. आपका हर एक स्पीशीज़ क्या होती है, एक जीन पूल होती है जो कि एक गिवन एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रही है अपने आप को. ठीक है, जीन पूल मतलब अगर आपके एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे हैं, तो मीन्स वो क्या कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, और उनकी बॉडी में जितने टाइप के जीन्स हैं मीन्स इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड जीन पूल. Okay, in a gene pool we are not going to leave any of the organism because there are some dissimilarities. कभी कभी तो आप मीन्स in a human beings also, अगर भाई बहन भी हैं एक घर में, तो there are means they are not exactly similar or same. वहाँ पर भी आपको differences मिलेंगे, but then too we belong to Homo sapiens, राइट. तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं तो उसी की बात की जा रही है कि वो डिफरेंसेस किसकी वजह से होते हैं, जीन्स अगर अलग हैं, है ना. तो अगर आपका एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है और उसमें जीन्स अगर अलग अलग हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग होंगे, तो वो जो अलग अलग जीन्स हैं दे एक्चुअली कंस्टिट्यूट द जीन पूल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर जीनस. जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़. जब आपकी रिलेटेड स्पीशीज़ मतलब एक जैसी स्पीशीज़ जो होती है ना वो साथ में आ जाती हैं, देन इट इज़ कॉल्ड जीनस.
now has more characters in common in comparison to the species of the अदर जेनरा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जीनस होता है इसमें रिलेटेड स्पीशीज़ जो होती हैं उनमें कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, और जो दूसरा जीनस होगा उसमें डिफरेंट होंगे। मतलब एक जीनस में वो सारी स्पीशीज़ आएंगी जिनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब मान लो दो जीनस हैं, उनकी दो स्पीशीज़ हैं, अगर उनमें कैरेक्टर्स सेम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको एक सिंगल जीनस में रख देंगे। ऐसे ही फिर अगर जीनस में क्या आ रहा है, कॉमन सी कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक फैमिली में रख लेते हैं। Now here they have given the examples like this one. For example, tomato, potato and brinjal are the three different species but they all belong to a genus सोलोनम, है ना। ये आपके टोमेटो पोटैटो जो हैं इनकी फैमिलीज़ जो है ना, मतलब ये स्पीशीज़ वाइज तो अलग अलग हैं, लेकिन जो सोलोनम है ये उसी जेनरा में रखे जाते हैं क्योंकि इनके काफ़ी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मिलते हैं। सिमिलरली लायन जो है पैंथरा लियो एंड लेपर्ड, है ना। तो लेपर्ड को भी देखिए जीनस उनका एक ही है, सिर्फ स्पीशीज़ अलग है ना। उसमें थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स अलग होंगे, तो दे हैव चेंज द स्पीशीज़ बट द जीनस इज सेम। Then tiger is Panther tigris have the several common features and they all belong to same genus Panthera। ठीक है, तो इनमें क्या है, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स सेम हैं, उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, इनको एक ही जीनस पैंथरा में ही रखा गया है। सिमिलरली वी आर हैविंग द फैमिलीज़ लाइक लेग्यूमिनेसी फैमिली। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जेनरा जो होते हैं, पल्सेस जैसे पाइसम हो गया, है ना, दिस इज़ ग्लाइसिन, बीन्स हो गया आपका, फैसोलिस, wheat, rice, maize has been placed together in the family Gramineae। तो ग्रामिनी में इसको रखा हुआ है। तो ये क्या होता है कि जितने भी सीरियल्स होते हैं वो सारे के सारे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, तो इन्होंने इसको एक ही फैमिली में डाला हुआ है। ऐसे ही आपके जीनस, मतलब काफ़ी सारे जीनस के जो कैरेक्टर्स हैं जब शेयर कर रही होती हैं कोई चीज़ें तो हम उसको एक फैमिली में डाल देते हैं। ओके, सो हेयर ऑल्सो दिस कैट फैमिली, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। कैट फैमिली हो गई आपकी, और ये पैंथरा है ना, टाइगर वाली फैमिली, ये दोनों के दोनों फिलीडेसी, ये कैट फैमिली है, और पैंथर, तो ये दोनों के दोनों काफ़ी सारे कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, तो इसलिए इनको क्या किया गया है, एक ही फैमिली में रखा गया है। ओके, कैट फैमिली में ही, मतलब जो लेपर्ड वगैरह है, टाइगर है, जो जीनस पैंथर है, इसको एसी फैमिली में रखा गया है। नाउ द फैमिली इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द फैमिली ऑफ डॉग्स एंड फॉक्सेस। और ये वाली फैमिली जो होती है, जो कैट फैमिली होती है, क्योंकि डॉग फैमिली में कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो कैनिडी, ये कैनिडी जो होती है ना, ये दिस इज़ द फैमिली ऑफ डॉग्स। ओके, एंड फिलीडेसी इज़ अ फैमिली ऑफ अ कैट। तो जो टाइगर, लॉयन वगैरह हैं, दे आर केप्ट इन दिस फैमिली बिकॉज दे शेयर सो मैनी कैरेक्टर्स। और आपके जो फॉक्स, डॉग वगैरह हैं, ये अलग से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, तो इनको अलग फैमिली में रखा गया है। ओके, नाउ सिमिलरली वी आर हैविंग ऑर्डर। जब बहुत सारी फैमिलीज़ क्या करती हैं, फैमिलीज़ में काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं, तो हम उसको एक ऑर्डर में रख लेते हैं। और ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी तो वी कीप देम इन अ क्लास। क्लास में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, अगर 2-3 क्लासेस में, तो हम उसको डिवीज़न में रख लेते हैं। और डिवीज़न के बाद सबसे बड़ा जो दिस what we say, this is the difference means it is in the kingdom, है ना। तो सबसे बड़ा जो यूनिट है आपका, दैट इज़ किंगडम ओनली। तो किंगडम में क्या करेंगे, किंगडम वी आर हैविंग ओनली 2 किंगडम्स, ठीक है। उसके बाद हमारा डिवीजन होगा, फिर क्लासेस होंगी, लाइक दैट, है ना। तो सबसे छोटा यूनिट जो है दैट इज़ स्पीशीज़ एंड द बिगेस्ट यूनिट इज़ किंगडम्स। नाउ प्लीज़ गो थ्रू दिस टेक्स्ट and then identification of a species. How do we identify the species? There are some characteristics and some uses of the key. How do we use them, that I'll tell you. Then aids for study of a taxonomy also we'll see in our next lecture. Okay, thank you. Meanwhile, please go through the text. Okay.